Good morning, friends. So today, a new day, a new beginning. So we'll be traveling to Nasik from Aurangabad today, and you'll be able to enjoy the view of Nasik and maybe see the process of making wine in Nasik, in one of the wineries in Nasik. So stay tuned. Good morning, friends. Welcome to my new vlog. So today we are traveling to Nasik. Now we are on the way to Nasik to visit the vineyards, which will take us around 2 hours from here. Maharashtra has a lot of agricultural land. Both sides of the highway, you see a lot of agricultural land. So you see the road is really good. It's broad, straight, endless driving. But since the weather is the monsoons, like the road is wet, we have to be a little bit careful while driving, and there's a lot of traffic, huge lorries traveling along with it. You can see a lot of sugarcane farms. Like Maharashtra, this area produces a lot of sugar. These are all sugarcane farms. The weather is cloudy. We are having continuous rain, but not as strong as in our parts. But still, so the weather is very pleasant, let's say. And you can see the road straight and very smooth. On both sides you have agricultural land. So far or distant, very distant, you won't see anything. Endless land, but later on you'll be seeing a little bit of the table land. So friends, from here you can see we are traveling on the Western Ghats. So you can see the land, it's more of a table land, it's raised, and the top of the lands are flat. And you can see along there are a lot of wind turbines that are placed on towards the Western Ghats. See, these are, I believe, to generate electricity. So in these parts of Maharashtra, I think at this time of the year, they grow a lot of sugarcane. So I think Maharashtra produces a lot of sugar. Of course, like in the other parts, other season of the year, other time of the year, I think they might be cultivating other crops. But right now they have a lot of. This is the way to sugarcane. The vineyards, which is through the, let's say, heartlands of rural Maharashtra. Because we get to see a lot of paddy fields on the side of the roads. But it's a nice, beautiful drive with narrow roads.
this is the vineyard known as Zalun. It's supposed to be a boutique wine. Not very common as Sula, but they have outlets on very selected states, and they make very good wine. That's the water reservoir. It's a huge water reservoir. So this place basically it's like a peninsula jutting out, which means like we have the water reservoir on all three sides. You see the vineyard. Those are the vineyards. Those are the vineyards. ये सब ग्रेप्स का vineyard है. The different brands of wine gets produced from Valorem. So this is the winery. This is the Valorem is a brand which makes wines here, and like the wines produced here are not sold in the local market, but you can find it in hotels like Taj Hotel or some big branded hotels in the major cities. क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा कम होता है सुनने में. तो ये मेरा नाम प्रभाकर काले है. पास्ट 20 ईयर से वाइन में वर्क कर रहा हूँ, और 13 दिसंबर 2011 ये यहाँ का मेरा ज्वाइनिंग डेट. सो ये वाइन 2009 से स्टार्ट हुआ है, और इसके ओनर है शैलेंद्र पै, जो मुंबई से बैंड्रा से है. उनकी ये जगह है. टोटली 21 एकड़ में हमारा जगह है यहाँ पे. उसमें से 10 एकड़ में कुर्जू विनायक प्लांटेशन है, और 25 एकड़ में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर रहे हैं. सो दोनों मिला के 100 टन क्रश पर ईयर, 70 to 80,000 बॉटल 750 ml. इतना यहाँ का पर ईयर का प्रोडक्शन है, जिसमें 3 टाइप की वाइन्स. सो 4 टाइप की वाइट वाइन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि शोनम ब्लॉन्ग, सविग्नॉन ब्लॉन्ग, रिजलिंग, मस्कट. मस्कट, मुस्काटो, मस्कट, एक ही बात करने का तरीका अलग है. तो ब्लॉन्ग मीन्स वाइट, दैट्स वाइट शोनम ब्लॉन्ग, सविग्नॉन ब्लॉन्ग. तो ये 4 टाइप की वाइट वाइन. दैन रोजे, कोई रोज नहीं डालते हैं उसके अंदर, कोई वाइट रेड एक जगह पे डाल के रोजे नहीं बनता है. प्रॉपर रेड ग्रेप से ही रोजे बनती है. रोजे इन इंडिया मेड बाय ज़िनफेंडल, शिराज, ग्रेनाश एंड पीनट. तो ये 4 टाइप रेड ग्रेप से रोजे बनते हैं इंडिया में, जो मीठा आता है. पिंक कलर है, मीठा है, ठंडा पीना है, विदाउट आस्किंग रोजे बाय करते हैं, क्योंकि लोगों को सबको मीठा और ठंडा ही चाहिए. तो यहाँ पे वाइन आपको आज कम मिलने वाली है. फ्रेंच स्टाइल वाइन मेकिंग है, तो मोस्ट ऑफ ड्राई वाइन यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा. जिन लोग को वाइन ज़्यादा पसंद है उनके लिए जगह, उनके लिए ही परफेक्ट है. वाइन लवर की ये जगह है. तो थोड़े से नए लोग, ये हॉट क्लाइमेट, ओपन टाइम, विदाउट फूड स्टार्ट करने वाले लोग वाइट रोजे ज़्यादा प्रीफर करते हैं. मैच्योर ड्रिंकर है, पहले डेवलप लेना है. इसके आगे रोजे में फ्रूट क्या है ये पढ़ के रोजे लोग, ये उस हिसाब से उसकी टेस्ट होती है. तो जनरली ज़्यादातर आपने ट्राई किया होगा तो ज़िनफेंडल और शिराज का ही मिलेगा रिपीट. तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इन इंडिया क्या बने सब में, वो एक अलग मिलने वाला है. उसके बाद मेरे पास एक ब्लेंड है शिराज एंड मेरलोट 70-30. तो फर्स्ट नाम हमेशा ज़्यादा होता है, सेकंड नाम हमेशा कम आता है. तो 70-30 अगर मैंने बताया तो 70% शिराज स्टील, 30% मरलो इज ओक बैग. सो ब्लेंड करने की वजह यही है कि मीडियम बॉडी फ्रूट फॉरवर्ड इजी ड्रिंकिंग रेट. जो वाइटनेस ऑक्सीजन जाता है अंदर, आप कैप लगाओ, कॉर्क लगाओ, वाइन के फ्लेवर निकलने स्टार्ट. जितना लेट करते जाते हो उतनी ऑक्सीडाइज हो जाती है. स्मेल करोगे तब टेस्ट करने जाओगे. लेकिन विनेगर, अनारकली, ये वो बहुत सारी चीज़ें, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं वाइन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ. तो मीठा क्यों होता है? लेट हार्वेस्ट का मतलब क्या है? विनेगर में रुकाते हैं, इमीडिएटली ला के क्रश करते हैं, इसलिए लेट हार्वेस्ट. तो जो भी नेचुरल ग्रेप जूस में स्वीटनेस होती है, ईस्ट ऐड करने के बाद ईस्ट का काम होता है स्वीटनेस को टर्न करना, अल्कोहल में. सो कंप्लीट फर्मेंटेशन अगर 20 दिन किया तो ग्रेप जूस को तो ईस्ट ने टर्न किया अल्कोहल में, तो उसमें रिमेनिंग शुगर जो है 90-95 ग्राम, वो आया कहाँ से? जो लेट हार्वेस्ट के साथ
इसका मतलब क्या होगा, एडेड शुगर जो लेट हार्वेस्ट में होगा। बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरे पास 160 ग्राम 165 ग्राम पर लीटर रेसिड्यू शुगर है, नो एडेड। सो 3000 kg ग्रेप्स मैच्योर राइप बंचेस सिलेक्ट किए हम लोग ने भी, जिसमें स्वीटनेस ज़्यादा आया। उसके बाद ईच एंड एवरी बंचेस टाइम हैंगिंग 1 मंथ। सो हर एक बंचेस को टाई करके रखने के लिए 150 लोग काम कर रहे थे 4 डेज 3000 kg ग्रेप्स के लिए। सो 1 मंथ के बाद उसको स्ट्रॉ हाउस बनाते हैं एक विनाड के साइड में, और 1 मंथ या 3 वीक्स उसको हैंग करके रखते हैं। फिर कनेक्ट करके अंदर ग्रेप्स को डालेंगे और फिर प्रोग्राम ऐड करके प्रेशराइज करने के लिए स्टार्ट करोगे तो उसका रिकवरी परसेंटेज मिलेगा सिंगल ड्रॉप ऑफ डेली। सो 3000 kg ग्रेप्स आउट ऑफ बॉटल है 973 375 ml। तो जो स्लिम वाला बॉटल है, ऊपर पतला वाला हो, और डेजर्ट का बॉटल है, देख के मन करता है इसको लेके जाना है या किसी को लिफ्टिंग करना है, तो भी शोनम डेजर्ट। सो फ्लेवर मिलेंगे डार्क गोल्डन कलर, हनी, किशमिश, फील, एप्रिकॉट, ड्राई फ्रूट्स, ये आएगा शोनम डेजर्ट। लास्ट ईयर हम लोगों ने इंडिया फर्स्ट रेड शिराज डेजर्ट ये भी लॉन्च किया है। सिमिलर प्रोसेस, टायर हैंगिंग, किशमिश, रेजिन प्रेस। फ्लेवर मिलेंगे गुलकर, रोज, किशमिश, पान, पीच, स्वीट, डार्क। खाना खाने के बाद कुछ भी मीठा खाना है, कुछ भी मीठा पीना है, जस्ट टेक इट टू सिक्स ओनली। बॉटल ओपन करके 1 मंथ चलेगी, वेस्ट होगा नहीं, क्योंकि स्वीटनेस नेचुरल है। अगर नहीं खोला 15-20 ईयर इंडिया में ये बनाने वाली पहली वाइन है। तो 15-20 साल आप रख सकते हो वाइन को विदाउट ओपनिंग। 5 to 6 डिग्री में पीना है, स्टोर करो लाइक 10 to 12 डिग्री टेम्परेचर। अभी जो लोड करना है वो टाइम के लिए स्किन क्रश होगी, सीड क्रश होगा, बिटरनेस ग्रीननेस जूस में जाएगा और वही वाइन की बॉटल में आता रहेगा। इसलिए फाइन क्रश नहीं करना है, लाइटली बस्ट विथ स्किन सीड जूस रहेगा। आगे से फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्ट होगा। तो ये सारा मिश्रण को निकाल के लेके जा रहे हैं। अंदर जो बलून है एक्सपेंड करने के लिए स्टार्ट, वॉल और बलून के बीच में सारा मिक्सचर। सो बलून स्लोली प्रेस करेगा, इमीडिएटली स्किन कॉन्टेक्ट से जूस रिमूव, रे में सारा जूस आएगा नीचे। अराउंड 48 to 50% रिकवरी जूस का लेंगे हम लोग। सो 1 kg ग्रेप, हाफ लीटर जूस। पहले स्टेम निकाला है, यहाँ से स्किन सीड भी गई कंपोस्ट, जूस आएगा ट्रे में, जिसके साथ ड्राई आइस डालेंगे। ड्राई आइस डालने की वजह ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट से बचाना है। सो हम लोग जूस से ही कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट से बचाया जाए, इसलिए ड्राई आइस। सो यहाँ से जूस को पंप और पाइप के थ्रू से कलेक्ट करके लेके जाते हैं टैंक। इसके पहले मैं रोजे के बाद ये जो टॉल साइज टैंक ये वाइट और रोजे के लिए यूज़ किया है, उसकी वजह जूस को सेट हो जाता है। कोई भी जूस का ग्लास आप आपकी फ्रिज में रखोगे और ज़्यादा ठंडा करते हो तो स्किन सेडिमेंट सारा बॉटल में क्लियर जूस ऊपर। तो यहाँ पे देखोगे रैकिंग और नीचे बॉटल, इसके ऊपर पूरा फाइन क्लियर जूस है, यहाँ से नीचे स्किन पार्टिकल। तो क्लियर जूस को पंप और पाइप के थ्रू से ट्रांसफर करेंगे 24 आवर्स के बाद। उसके बाद स्किन सेडिमेंट बॉटम से ड्रेन किया है, जो टाइम में क्लियर जूस गए उसके साथ ईस्ट एडिशन। वाइन की ईस्ट अलग है, ब्रेड बटर की ईस्ट अलग है, ईस्ट भी इम्पोर्ट कर रहे हैं हम लोग फ्रांस। ईस्ट का काम है स्वीटनेस को टर्न करना अल्कोहल में। तो जो भी नेचुरल ग्रेप जूस में स्वीटनेस यहाँ पे ईस्ट उसको कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए काम करते रहता है, लाइक 12, 14, 16, 18, 20, 24। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस कंटिन्यू होगा। यहाँ पे अगर कंप्लीट फर्मेंटेशन होने के लिए 20 दिन तो शुगर बचेगी नहीं और ड्राई वाइन लगेगी, कोई स्वीटनेस बॉटल में आएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे नेचुरल स्वीट रखना है, जैसे मस्कट के लिए रखा है 20 ग्राम रेसिडुअल शुगर। तो 2-3 डेज इसको पहले रिमूव करेंगे डेट करने के बाद। तो स्वीटनेस जो बचा है बॉटल में प्रेजेंट होगा। तो नेचुरल स्वीट करना है तो भी कर सकते, कंप्लीट ड्राई करना है तो भी कर सकते। उसके आगे 20 दिन के बाद डेट इसको निकाल लिया। आगे 4 to 6 मंथ के बाद बॉटल फिलिंग, यंग फ्रेश हॉट क्लाइमेट में को ठंडा करके पीने वाला वाइन बनाओ, बेचते रहो, डिमांड सप्लाई। इस साल रिजलिंग ज़्यादा बिक रहा है, नेक्स्ट ईयर रिजलिंग ज़्यादा क्रश होगा। शनम लॉन्ग कम बिक रहा है, शनम का क्रशिंग कम होगा। तो वाइट और रोजे पुराना करना ही नहीं है, जितनी रिफ्रेशिंग लोगे उतनी ज़्यादा वाइट और रोजे होती है। तो सिमिलर प्रोसेस वाइट और रोजे, किंग जूस सेटल रैक, ईस्ट एडिशन, कंप्लीट फर्मेंटेशन, बट रोजे में ग्रेप्स बढ़ के रोजे लेना है। सो रखो, ओपन करो, फिनिश करो, लाइट फूड लाइट वाइन, जूस को हटाते हैं। ये रेड के लिए स्किन जूस सारा एक साथ रखता है। ये ब्रॉड साइज टाइम लेने की वजह क्या है, स्किन कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आता है। तो जो कलर मिलेगा स्किन देने वाली है, जो टैनिंग मिलेगी वो स्किन और स्किन देने वाला है। तो डेली जूस के लिए क्या करते हैं, रैकिंग वॉल से जूस निकालते हैं और फ्लश करते हैं स्किन के ऊपर। तो जब ये स्किन में से जूस को बार बार मिक्स करते रहते हैं तो कलर डार्क आने वाला है, टैनिंग एक दूसरे के साथ मिक्स होने वाले हैं। ईस्ट एडिशन इसमें ही होगा, कंप्लीट फर्मेंटेशन होगा और रेड में स्वीटनेस बचने का चांस है ही नहीं। 30 दिन के बाद ग्राइंडर से आने वाला करेंगे, अंदर बचेगा क्या, स्किन है, सीड है, जूस भी है। क्योंकि स्किन के लिए कुछ हद तक जूस को होल्ड किया है, ये डोर ऊपर होगा, सारा मिक्सचर निकाला जाएगा। अगेन न्यूमेटिक प्रेस। 30 दिन के बाद फिर प्रोग्राम है, फिर प्रेशराइज, फिर बचा 5 to 10% जूस वाला स्किन, फिर कंपोस्ट जूस आएगा वापस। यहाँ से आगे 2 टाइम रेड वाइन।
जिसके लिए ढक्कन होता है हाथ से खोलने वाला 1.5 years स्टील टैंक, उसके बाद बॉटल फिलिंग, मीडियम मॉडरेट फूड फॉरवर्ड इंक्रीज ग्रेड। इजी ड्रिंकिंग का मतलब क्या होगा, जैसे पियो वैसे फिनिश। मीडियम बॉडीज का मतलब है टन से नीचे टेस्ट। फुल बॉडीज का मतलब है ईच एंड एवरीथिंग कवर करके पकड़ा हुआ पी। रिजर्व का मतलब है वो डालने में रखी हुई वाइन्स। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 वाइन रखी है, मान लो और क्या मे भी नेक्स्ट टाइम आओगे उसकी भी बॉटल मिलेगी, आज आपका स्टॉक वाइट का, तो उसका बॉटल फिलिंग करने वाले 2-4 दिन में। तो अभी वाइन टेस्ट करते हैं, जितना मुझे पता है वाइन टेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, ग्लास कैसे रोल करना है, ग्लास में कितनी वाइन डालनी है, सोल क्यों करते हैं, ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा। फिर आपको 6 वाइन फॉलो करनी 1 by 1। इस स्टॉक के साथ रखा है फूड फॉरवर्ड 50 मंथ बट फुल बॉडी टेस्ट। ब्लड रेड एक सिर्फ ग्लास में बचाना है। मैं आपको कुछ आज चीज़ें सिखाने वाला हूँ जिससे बहुत मज़ा आने वाला है। जो रेड वाइन पिएंगे उनके लिए, जिसको रेड वाइन पसंद नहीं है उसको सोच समझ के जाओगे ऐसे, ये फिर यहाँ पे आने के बाद इधर आना ही, ये पसंद ना आएगा। बट टेस्टिंग जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्टिव होता है, वाइट रेड रोज जब भी कुछ भी पसंद आ सकते हैं। अभी मुझे बताओ आपके फर्स्ट क्या चॉइस है, क्या पसंद किसको आया है, कुछ फर्स्ट वन। नेचुरल हो नेचुरल होला भाइ, आर्टिफिसियल त कहाँ बनाउँछ? हुँदैन हाम्रो त्यो है पाहुनाले जब के भन्ने त सी जस्तो देख्छ। So guys, this is the drive back from the winery. So it was a good experience for people like us who are from the hills, from a small hill town, to visit a vineyard and a winery, learn about the process of winemaking. It was very interesting. So this is the way back to Pune from the vineyards. So you can see the highway. It's beautiful. It's been cut out from massive hills, the rocky hills. It just cuts through the rocky hills. It's a beautiful drive, beautiful scenery. But you see the monsoons are in full swing in the parts of Maharashtra. You can see the clouds ahead of me. It's raining since morning and it's non-stop, but of course it's not as heavy as in our parts. So please stay tuned. We'll be back with you with new vlogs. Thank you.